Hello, welcome to the Civil Lab. In this video, we are going to see how to design and detail of a pile. Pile in the sense board, cast, in situ concrete pile. As per IS 291 2010 and SP 16 1980. Before we start design and detail of the pile, we will see what are the terminologies and what are the design criteria to detail a board, cast, in situ concrete pile. I will write here board, cast, in situ concrete pile. First of all, the grade of concrete should be M25. If you can see clause 7.3.3, here I am showing C of IS code 291 part 1 section 2 2010. The minimum grade of concrete to be used for board piling shall be of M25. That's what code is telling. The minimum cover should be of 50 mm. We can see it here. In clause 6.1.4, the clear cover to all reinforcement in pile shaft shall not be less than 50 mm. That should be minimum 50 mm. Third case, the and most important, because in most of the case, this for providing longitudinal reinforcement, this 0.4% will govern. We'll see it later. The minimum area of longitudinal reinforcement within the pile shaft is equal to 0.4% of the sectional area. See here in 6.1.1.1, the minimum area of longitudinal reinforcement or grid within the pile shaft shall be 0.4%. It's clearly mentioned in the code. This term I need to check. The minimum lateral reinforcement shall be of 0.2% of the cross volume of the pile. It is not as such mentioned in the code, but in some books it is written so, like H.S. Sahasar book. The minimum diameter of link, point number 5. The minimum diameter of the link should be of 8 mm and spacing shall not less than 150 mm. This we can also find it here. Everything that I am telling is mentioned in this code. You not need to worry about this. Everything is mentioned here. I'm just recalling all that so that before we start design, we should have all the concepts clear. The minimum diameter of the link should be 8 mm. 6 point, minimum 6 number of bars should be so circular piles. It is also written here. If you see, sorry. The minimum 6 number of vertical bars shall be used for a circular pile. 6 bars. Suppose this is my pile cap. Sorry, this is my pile. And there should be 6 bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And it should be of 12 mm dia. That's what is written here. Minimum diameter bar should be 12 mm and minimum bar 6 numbers. It is a minimum criteria. And if we check what is the area of steel for this minimum reinforcement. Suppose 12 mm bar area 113, 6 number of bars. 113 into 6, 678. It is coming 678 mm square. This is the minimum steel we have to provide. This is the minimum steel we have to provide. This much, 678 mm square. That's what code is telling us. Next we see
The clear horizontal spacing between the adjacent vertical bar. The code, it means, suppose this bar 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the adjacent bar. And this spacing shall be of 4 times the maximum size of aggregate size in concrete. Suppose our aggregate size is 20 mm. Iska 4 times, it will come out to be 80 mm. So this should be of 80 mm and more, greater than equal to 80 mm. So that, why 80 mm? So that whatever the concrete we will pour, it will come inside easily without any hindrance, and a proper compaction can occur. So before we will start, these are some basic things we need to follow while designing a pile and detailing a pile. So let's start the now in a real case pile design. जो हम लोग स्टैट से जो आउटपुट निकालते हैं और उस फाउंडेशंस में जो रिएक्शंस आता है उससे हम लोग पाइल डिजाइन करते हैं. Suppose here I have shown one example. Suppose we have 450 dia board pile. These things come from soil report. You don't need to worry. आप जिस साइट का भी डिज़ाइन कर रहे हो पाइल फाउंडेशन, वहाँ का जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उससे हम लोग को ये डाटा मिल जाता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना. आप अपने जो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे उनसे आप ये डाटा मांग सकते हैं. दिस डाटा इज फ्रॉम स्टैट प्रो. दिस डाटा इज फ्रॉम स्टैट प्रो. सपोज कोई एक नोड होगा 78. सपोज दिस इज अ नोड 78. इस पे लोड आ रहा है एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड. दिस आर द लोड्स कमिंग एंड दिस आर द फैक्टर लोड्स. फैक्टर लोड्स, इसको हमको डायरेक्टली यूज करना है पाइल डिजाइन में. सपोज करते हैं अभी हम लोग हर एक पाइल पे इतना लोड आ रहा है, ठीक है, हर एक पाइल पे इतना लोड आ रहा है. So let's start the pile design now. First of all, our FCK will be 25 Newton per mm square. ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि M25 होना चाहिए. Fy should be 500 mm Newton per mm square. Okay. Then clear cover will be of 50 mm. जो मिनिमम कोड्स पे लिखा हुआ है हम लोग बस उसी को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, और एज पर द साइट रिक्वायरमेंट आपका चेंज हो सकता है. क्लियर कवर आपका इतना हो गया. एंड डाया ऑफ द बार, जिस जो हम लोग पाइल्स में यूज करेंगे, वो आपका मान लीजिए 12 mm है, ठीक है. और आपका स्टेरअप स्लैश लिंक ये 8 mm है. सब अभी हम लोग मिनिमम यूज कर रहे हैं. तो आपका सबसे पहले हमको निकालना है डी डैश. डी डैश कितना हो जाएगा? 50 प्लस 8 प्लस 12/6. दैट्स कम आउट टू बी 60 mm, ठीक है. और आपका कैप स्मॉल डी कितना हो जाएगा? ये तो आपका कैपिटल डी है आपका 450 mm. स्मॉल डी हो जाएगा 450 mm माइनस डी डैश, कितना आ जाएगा आपका? 450 mm माइनस 60, फिर का 390 mm. ये आ जाएगा आपका 390 mm. Then we'll move to next thing. What you have to do is check for D dash पे capital D. D dash पे capital D. ये कितना आ जाएगा आपका? D dash 60 mm हो गया.
कैपिटल डी है 450 mm। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। ये देखिए, आपको एज इट इज इसको फॉलो करते चलना है। डिवाइडेड बाय 450 mm, इट्स कम आउट टू 0.13। ये कितना रहा आपका? 0.13। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग इस पे एक और कोड है हमारा, SP16। SP16, ठीक है। और पाइल्स को हम लोग एज अ कॉलम डिजाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा, SP16 को अगर आप जब भी यूज करते हैं, या आपने यूज तो जरूर किया होगा कॉलेज में भी, तो यहाँ पे एक होता है डी डैश बाई डी। वो इसलिए हम लोग यहाँ पे डी डैश बाई डी कैलकुलेट, इससे हमें चार्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा चार्ट है। अभी हमारा डी डैश बाई डी आएगा 0.1। और तीसरा, हमारा एफ ई कितना है? 500 है। ये दो चीज होना चाहिए चार्ट्स के लिए। तो इन आवर केस, देखिए चार्ट्स, अगर हम लोग चार्ट्स निकालेंगे, अब चार्ट्स दे सकते हैं। जीरो डी डैश बाई डी 0.15 का है, डी डैश बाई डी 0.10 का है, और हमारा कितना आया है? 0.13। तो थोड़ा हम लोग सेफर साइड में, हायर साइड का लेते हैं। तो हम लोग चार्ट यूज करेंगे, चार्ट नंबर 61, कंप्रेशन विथ बेंडिंग, सर्कुलर सेक्शन के लिए। हमारा पाइल भी सर्कुलर है, तो हम लोग सर्कुलर सेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं डिजाइन में। ये 9 नंबर पे SP16, चार्ट नंबर 61। ओके, देन वी नीड टू कैलकुलेट। अब देखिए, अब इस चार्ट्स पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है, देखिए। इस चार्ट पे दो डाटा है। सबसे पहला है ये आपका, ये PU/FC/D², ठीक है। एंड नेक्स्ट डाटा है आपका ये MU/FC/D³। हम लोग यही दोनों डाटा को निकाल के चार्ट पे हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, जो हमारे पाइल्स पे आएगा। तो हमें PU भी पता है, FCK भी पता है, D भी पता है, MU भी पता है, FCK भी पता है, D भी पता है। तो मैं एक बार यहाँ पे आप लोग के लिए लिख देता हूँ। हमारा PU कितना है, कलर चेंज कर देते हैं। PU है हमारा 677.253, 677.3 सपोज, ठीक है। और MU है हमारा, MU कितना है देखिए, MX MY MZ मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 50.689। इसको हम देखते हैं 50.9 kN/मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं PU/FC/D² कितना हो जाएगा? 677.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय FC हमारा 25 है, और D है 450²। ठीक है, हम उसको चलिए कैलकुलेट करें, कितना आ जाएगा हमारा? 677.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइडेड बाय 450, कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 0.1337। सिमिलरली हम लोग MU/FC/D³ कैलकुलेट करेंगे। MU कितना है हमारा? 50.9 10⁻6 10⁻6, FC 25, 450³ ये कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी, ये आ जाएगा हमारा 3.9 10⁻6 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 450⁻3, 0. ये आ रहा है हमारा 0.022, यही आ रहा है। तो हमें दो वैल्यू मिल गया।
अब यही दो वैल्यू को हम लोग चार्ट्स में प्लॉट करके हम लोग इससे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एफसीके, और इससे हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील पता चल जाएगा। वैल्यू यहाँ पे निकल गया है 0.1337 और 0.022। इसको हम लोग चलिए प्लॉट करते हैं। आप एक बार चार्ट देख लीजिए, ये है सी, इसी का बात कर रहा था मैं। चार्ट कैसे पता चलेगा, देखिए एफ 500 है मेरा, और डी डैश पेड 0.133 है, तो थोड़ा हायर साइड में हम लोग जाएंगे तो 0.15। यही चीज़ का बात कर रहा हूँ, ये चार्ट नंबर 61, इस पे 16 से आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा, आपको इजीली ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यू निकाला है यहाँ पे पी यू बाई एफ सी के डी डी पी यू बाई एफ सी के डी स्क्वायर का, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं थोड़ा छोटा सा। तो ये हमारा 0.1337 है, हम ये हमारा 0 है, 0.02 है, 0.04 है, 0.058, 0.08 है, 0.1 है, तो ये 0.2, 0.33 ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ रहेगा। ये आप डिवीजन से देख सकते हैं। इससे मिले थे 0.02, ये 0.0 है, 0.01 है, ये 0.02 समथिंग यहाँ पे रहेगा। तो ये जीरो, ये आप देखिएगा तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, ये 0% पे आ रहा है, प्योर कंप्रेशन जोन पे है ये। ठीक है, तो इसमें हमारा मिनिमम स्टिल गवर्न करेगा। तभी हम लोग देखते हैं पीटी बाई एफ सी का कितना आ गया हमारा, यहाँ से पता चला, यहाँ से पता चल रहा है 0, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील बाय एफ सी के, हो गया हमारा 0। ठीक है, मतलब 0 आया तो इसे डरना नहीं है। तो हम लोग थर्टीन थर्टीन पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा पीटी बाई एफ सी के आ गया हमारा 0, तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया 0। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई कंक्रीट वाले पाइल में रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। कोड क्या बोलता है, 0.4% का यहाँ पे आपको स्टील मिनिमम स्टील, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील देना है। तो हम लोग एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। सिंपल चीजें हैं, बस इसी को बहुत कोई एक्सेल में डाल के आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट, ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आप इसको सेम एक्सेल पे आप नॉर्मल जैसे फॉर्मूला डालते हैं, आप एक शीट बना सकते हैं। और अगर आपको, मैंने शीट बनाया भी है, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं ही आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा, अगर अपना ईमेल आईडी आप कमेंट पे डालिएगा तो। ठीक है, तो अब हमारा 0.4% मिनिमम, तो कितना हो जाएगा, 0.4/100 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, 450 स्क्वायर, कितना आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 0.4 इंटू 3.14 इंटू 450 स्क्वायर, 4 इंटू, ठीक है, इंटू 400, सिम डायरेक्ट कर देते हैं। कितना आ रहा है, 635, 636, ये आ रहा है हमारा 636 mm², सी 15। कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि आपको मिनिमम मिनिमम बार देना है, नंबर ऑफ बार देना है 6, और डाया कितना देना है 12। हमने कितना निकाला था, एक 12, ये सब आपको याद हो जाएगा करते करते। 12 का डाया का एरिया होता है 133 इंटू 6, कितना आएगा ये आ जाएगा 133, सॉरी 113 इंटू 6, ये आ रहा है 678, ये आ रहा है आपको 678 mm²। तो आपका ये निकल गया, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है पाइल का वो इतना होगा, 6 बार होगा
जैसे मान लीजिए ये आपका पाइल हो गया, इग्नोर कीजिएगा। इस पे आपका बार आ गया 1 2 3 4 5 6। अब इसी पे हमारा स्टेरअप आ जाएगा, लिंक्स ऐसे कर। तो ये हो गया हमारा 6 बार ऑफ 12 5। और ये कितना हो जाएगा 885 @ 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये बनता है। और हम लोग अब इसका ये निकाल लेंगे, ये बार का डिस्टेंस कितना है। तो हमें इसका ये पता है 450 mm डाया है इसमें। मतलब इफेक्ट इसका डाया इफेक्टिव है डी है 390 mm। ठीक है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर पाई डी हो जाएगा 3.14 × 390 mm। कितना आ जाएगा 3.14 × 390। ये आ रहा है आपको 1225 mm। कितना बार है मेरा, 6 बार है। हर बार का स्पेसिंग कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। ये कितना आ रहा है 204 mm। 204 mm विच इज मोर देन 80 mm। जो बोलता है ना 4 टाइम्स ऑफ एग्रीगेट मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, जो कि 4 × 20 हम लोग करेंगे तो 80 mm आएगा। उससे ज़्यादा है तो मतलब ठीक है। उसको अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से देख लें तो ये है इस पे, और इस पे एक बार तो इससे छोटा नहीं बन सकता, इसी को बड़ा कर देते हैं हम लोग। एक बार, दो, तीन, 4 5 6। ये 6 बार आ गया पाइल। तो हमारा पाइल का सब कुछ निकल चुका है। हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया 6 नंबर्स, 12 डाया। एंड हमारा स्टीरअप हो गया 8 डाया @150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर चेक और पाइल्स में जो शेयर चेक होता है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।